आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशर जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम LRS के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। तेलंगाना के जंगौन से ताल्लुक़ रखने वाले जयसागर राव नामी शख्स ने मफाद आमा की अपनी अर्जी में इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना, AP और तमिलनाडु में मुनासिब तज्ज़िया के बगैर इस स्कीम पर अमल किया जा रहा है। जस्टिस L नागेश्वर राव की ज़ेर क़यादत एक सहरुकनी बेंच जिसने इस मामले की समाअत की, तेलंगाना, AP और तमिलनाडु को नोटिस जारी की। अर्जी गुजार ने दावा किया कि LRS के जरिए गैर मजाज कब्जे करने वाले रियल इस्टेट एजेंट्स अहदेदारों को इस स्कीम के जरिए बेकायदगियों का मौका हाथ लगा है। अर्जी गुजार ने कहा कि गैर मजाज कब्जों की वजह से कई मसाइल पैदा हुए और हैदराबाद, चेन्नई में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। अर्जी गुजार ने अदालत से ख्वाहिश की कि गैर मजाज लेआउट्स की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर बल्दिया नज़्म व नस्क KT रामाराव ने वनस्थलीपुरम रैतू बाजार के करीब 28 करोड़ तामीर किए गए 324 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर वजीर तालीम सबीदा इंदिरा रेड्डी, रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दिगर मौजूद थे। वजीर बल्दिया नज़्म व नस्क खिताब करते हुए बताया कि मुल्क की आज़ादी के बाद से किसी भी रियासत में और कोई भी वजीर आला 1 रुपया लिए बगैर कमज़ोर तबक़ात को 8 लाख रुपए मालियाती डबल बेडरूम मकानात तकसीम नहीं किए। ये एजाज़ तेलंगाना की TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को हासिल है। उन्होंने बताया कि 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का मरहलावारी तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। KT रामाराव ने बताया कि वनस्थलीपुरम में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात में जो लिफ्ट लगाई गई वो CMO ऑफिस के तर्ज पर है। ఇక్కడ సుధీర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడే చెప్పినారు, రైతు బజార్ పక్కన ఈ 2 ఎకరాల స్థలంలో కొన్ని గుడిసెలు, చాలా అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో ఇక్కడ పరిస్థితి ఉన్న విషయం, ఒక బస్తీ ఉండే విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. 5 ఏళ్ల కిందట ఆనాడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విజ్ఞప్తి మేరకు, ఆనాడు జిట్టా రాజశేఖర రెడ్డి విజ్ఞప్తి మేరకు వెంటనే మంజూరు చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంజూరు చేసి, మరి ఈరోజు ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ కడితే ఎంత నాణ్యంగానైతే ఇండ్లు ఉంటాయో ఆ స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలో ఏ లిఫ్ట్ అయితే ఉన్నదో, ఏ షిండ్లర్ కంపెనీ లిఫ్ట్ ఉన్నదో అదే లిఫ్ట్ని ఇక్కడ పెట్టి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో పేదవారికి ఇల్లు అంటే ఒక డబ్బా ఇల్లు కట్టడం కాదు, ఒక ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండే విధంగా పేదవాడి ఇల్లు అంటే కూడా దానిలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉండాలి, అందరూ ఆత్మగౌరవంతో ఉండే విధంగా ఉండాలనే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఏదైతే ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగా ఈ 324 ఇండ్లను ఈరోజు మీకు అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికి ఒక మాట కూడా చెప్పాలి. ఇలాంటి ఇండ్లు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ప్రభుత్వము కూడా చేయలేదు, చేపట్టలేదు. ఇప్పటివరకు 72 ఏళ్లలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. 2 పడక గదులు, ఒక హాలు, 2 బాత్రూమ్లతో కిచెన్కు పక్కన మళ్ళీ ఒక ప్రత్యేకమైన వాష్ ఏరియా కూడా పెట్టి 560 స్క్వేర్ ఫీట్లు, ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్కు ఒక్కొక్క ఇంటికి 9 లక్షలు దాదాపుగా ప్రభుత్వమే అనా పైసతో సహా ఖర్చు పెట్టి, ఇదే మార్కెట్లో ఒకవేళ ఇదే ప్రైవేట్ బిల్డర్ కనుక ఇదే స్థలంలో కట్టింటే వనస్థలిపురంలో 40-50 లక్షలకు తగ్గకుండా ఉండే ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్ని ఈరోజు మీకు అప్పచెప్తున్న విషయాన్ని కూడా దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం ఏదైతే ఉన్నదో ఒక విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. 1,00,000 ఇండ్లు ఇప్పుడే సుధీర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 90-95% పూర్తయి చివరి దశలో ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 10,000 పైన అయిపోయినాయి, మిగతా అన్ని కూడా చివరి దశలో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న ఈ ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాం ఏదైతే ఉన్నదో భారతదేశంలోని ఏ నగరంలో కూడా ఇంత పెద్ద స్లమ్ రీడెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం జరగడం లేదు. బొంబాయిలో కానీ, ఢిల్లీలో కానీ, కలకత్తాలో కానీ 9,714 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिकंदराबाद कारखाने में इसरी पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, DGP महेंद्र रेड्डी और आला पुलिस अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में ऐसे इसरी पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं जो मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं है। उन्होंने बताया कि आइंदा 2 माह में मुल्क का पहला कमांड कंट्रोल जिसमें हेलीपैड की सहूलत भी मौजूद होगी। उन्होंने बताया कि हमारी पुलिस
फ्रेंडली पुलिस है और यहाँ का अमन व आमा मुल्क भर में मिसाली है। तेलंगाना के क़याम के बाद मुजरिमाना वाक़यात और ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात में कमी हुई। उन्होंने बताया कि शी टीमों का क़याम अमल में लाया गया, सीसी कैमरों का जाल बिछाया गया, मुस्तक़बिल में मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। टीआरएस की रुकन क़ानून साज कौंसिल के कविता ने 1971 की जंग को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिस पर वो सरगर्म रहती हैं, पर अपने एक ट्वीट में कहा कि 50 साल पहले आज ही की तारीख को हिंदुस्तान में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। कविता ने कहा कि वो हमारी फ़ौज के अज़्म को सलाम करती हैं और इन बहादुर दिलों को आजिज़ाना ख़िरात पेश करती हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमत करते हुए अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी है। साथ ही आखिर में उन्होंने जय हिंद और विजय दिवस भी लिखा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ओहदा हासिल करने के सिलसिले में सरगर्मियां हैदराबाद से अब दिल्ली मुंतकिल हो गई। इस ओहदे को हासिल करने के लिए कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कोमट वेंकट रेड्डी, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस रुकन असेंबली श्रीधर बाबू दिल्ली पहुंचते हुए सदर ऑल इंडिया कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी से मनसूबा बनाया है। जराये के मुताबिक कोमट वेंकट रेड्डी चाहशुंबे की सुबह सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए इन्हें सदर PCC के ओहदे पर फायज करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की पार्टी जराये ने वाजे किया कि कई पार्टी कायदीन ने आला कमान को इस बात से वाकिफ करवाया अगर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस की बागदौड़ की जिम्मेदारी हवाले की जाएगी, पार्टी में नाराजगी का इजाफा होगा। तेलंगाना में ख़वातीन की ख्वानदगी की शरह 66.6% है, जबकि मर्दों की ख्वानदगी की शरह 84.8% है। यह इंकशाफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS में हुआ। NFHS ने रियासत में 27,351 ख़ानदानों का सर्वे किया, जिसमें 27,518 ख़वातीन और 3,863 मर्द शामिल हैं। सर्वे में बताया गया है कि शहरी इलाके में ख़वातीन की ख्वानदगी की शरह 81% और देही इलाकों में 58.1% है। मर्दों के मामले में ये शहरी इलाकों में 90.2% और देही इलाकों में 81.3% है। सर्वे के मुताबिक ख़वातीन 61.2%, 45.5 मर्द 10वीं जमात की तालीम हासिल की है। 10वीं जमात से ज़्यादा तालीम याफ्ता ख़वातीन की तादाद देही इलाके में 36.3 है और शहरी इलाकों में 60.9 है। मर्दों के मामले में ये शहरी इलाकों में 54.6 और देही इलाकों में 71% है। ताहम 2 माह कबल जारी करदा कौमी शुमारियाती सर्वे में पता चला है कि हमारी रियासत की ख्वानदगी की शरह 72.% है। सदरनशीन हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो के सिवन ने SSA कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये कंट्रोल सेंटर हिंदुस्तान में तमाम खलाई बेदारी की सरगर्मियों का मरकज़ रहेगा। ये सेंटर बैनुल अक़वामी एजेंसियों की तर्ज पर कायम किया गया है, जो मदार में भेजी जाने वाली खलाई एशिया के मशाहिदाती मरकज़ में हासिल होने वाले डाटा की प्रोसेसिंग का काम भी करेगा। कंट्रोल सेंटर से मुशाहिदाती मराकिज़ को रिमोट से चलाने की सहूलत रहेगी। इसमें लियाब्स भी कायम किए जाएंगे। इसरो के इस मरकज़ के क़याम से इसकी SSA सलाहियतों में इजाफे के सिलसिले में एक अहम संग मेल हासिल किया गया है। इस तरह आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद मुक्तफी बनने की सिमत राह हमवार हुई है। फार्म हाउस के तनाज़े के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत तेलंगाना हाई कोर्ट ने की। क़ब्ल अज़ीम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की जानिब से दाखिल करदा नोटिस अबूरी अहकाम पर सवाल उठाते हुए तारक रामाराव की जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर अदालत ने रोक लगा दी थी। तारक रामाराव की जानिब से दाखिल करदा नई अर्जी की आज समाअत चीफ जस्टिस RS चौहान, जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने की। इस मौके पर मलकाजगिरी लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाले तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व अर्जी गुजार रेवंत रेड्डी की तरफ से रुजू होते हुए इनके वकील ने कहा कि NGT के अहकाम पर हाई कोर्ट की जानिब से लगाई गई रोक को बर्खास्त किया जाए। इस मरहले पर चीफ जस्टिस RS चौहान ने कहा कि NGT की जानिब से जो उमूर
इस मामले में उठाए गए हैं, इनकी जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इनका तबादला हो रहा है, इसलिए ये वक्त इसलिए मौजू है। चीफ जस्टिस ने इस मामले की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने एनजीटी चेन्नई को एक अर्जी पेश करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि वजीर तारक रामाराव का फार्म हाउस ममनुआ जोन में है, जो जीओ की खिलाफ वर्जी है। एनजीटी ने इस पर वजीर को नोटिस जारी की थी और वजाहत की ख्वाहिश की थी। एनजीटी ने मरकजी और रियासती हुकूमत के अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील के अबूरी अहकाम भी जारी किए थे, ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि तारक रामाराव के फार्म हाउस सरकारी अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर नहीं किया गया था। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कौमी दारुल हुकूमत के दौरे पर हैं, आज मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और पोलावरम प्रोजेक्ट को तेजी से मुकम्मल करने के लिए मुनासिब इमदाद की फराहमी की ख्वाहिश की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के नजरसानी शुदा तकबीना जात की मंजूरी पर भी जोर दिया। जगन ने मरकजी वजीर को बताया कि पोलावरम प्रोजेक्ट के नजरसानी शुदा मुसारिफ 55 करोड़ 656 रुपए की होंगे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हासिल की जाने वाली अरजियात के मालिकीन और बाज़ाबादकारी के मसारिफ की इजराई की ख्वाहिश की। वज़ीर आला ने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट से बेदखल होने वाले ख़ानदानों की तादाद ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 1769 करोड़ रुपए की रकम की बाज़ाबतकारी की जानी है। ये रकम रियासती हुकूमत की जानिब से इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ की गई है। इस प्रोजेक्ट की तामीर में ताख़ीर से इसके मसारिफ में इजाफा होगा। इसकी जल्द तकमील ज़रूरी है। क़ब्ल अज़ीम मंगल की शब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए जगन ने इन पर जोर दिया कि वो AP हाई कोर्ट को अमरावती से कर्नूल मुंतकिल करने के लिए एलामिया जारी करें। उन्होंने मिस्टर शाह के इल्म में इस बात को लाया कि बीजेपी ने 2019 के इंतखाबी मंशूर में कर्नूल में हाई कोर्ट के क़याम की हिमायत की थी। वज़ीर आला ने कहा कि AP की बहैसियत मजमूई तरक्की 3 दारुल हुकूमतों के जरिए मुमकिन है। AP बीजेपी के सदर सोमू वीरराजू की क़यादत में बीजेपी के कारकुनों ने विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पर धरना देते हुए मुतालबा किया कि मनादिर की दोबारा तामीर की जाए, जो कृष्णा पशकरम से कबल तरक्याती कामों के लिए मुनदिम की गई थी। वीरराजू के साथ साथ रियासती बीजेपी के इंचार्ज सुनील देवधर और दिगर लीडरों ने सड़क पर यह धरना दिया और वजीर एनवायरनमेंट V श्रीनिवास राव से इस्तीफा का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। बीजेपी के रियासती सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने चर्चेस और मसाजिद की तामीर के लिए 24 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत ने किस तरह अवामी रकूमात को मसाजिद और चर्चेस की तामीर के लिए सर्फ किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हिंदू मजहब पर कोई अक़ीदा नहीं रखती। हुकूमत मनादिर की तामीर की रकूमात का इस्तेमाल दिगर मकासिद के लिए कर रही है। AP के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों के एहतजाज का 1 साल जुमेरात को मुकम्मल हो रहा है। इस मौके पर अमरावती परिरक्षण समिति ने जिन भेरी के नाम से बड़े पैमाने पर जलसा मुनक़िद करने का ऐलान किया है। कल सुबह 10 बजे दिन से 2 बजे दिन तक होने वाले इस जलसे में तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। समिति के सदर शिवा रेड्डी ने कहा कि कल इस एहतजाज का 1 साल मुकम्मल हो रहा है। इसके पेश नज़र गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत के रायपुरी देहात में यह जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। दूसरी तरफ रियासत के किसानों ने अमरावती को इंतजामी दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने पर जोर देते हुए वाईएस जगनमोहन रेड्डी ज़ेर क़यादत हुकूमत पर जोर दिया। रियासत के लिए 3 दारुल हुकूमतों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत इस मसले पर संजीदा नहीं है। 29,000 किसानों ने 33,000 एकड़ अराजी रियासत के लिए नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए दी है। वो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हुए। रियासत हुकूमत पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती और मरकज़ी हुकूमतों का इस मसले पर उन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत ईमानदारी और मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमरावती के मसले पर गौर करे, जिसने मुत्तहिदा AP की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर तेलंगाना की हिमायत की थी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने रियासत के किसानों के साथ दगाबाजी की है।
तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के तमाम तबक़ात से वाज़ेह अपील की कि अमरावती को रियासत के वाहिद दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने के लिए तारीख़ी जद्दोजहद में शामिल हो जाएं। उन्होंने अमरावती के एहतजाज के 1 साल की तकमील के मौके पर ये अपील की और याद किया कि किस तरह नौजवानों को रोज़गार के बड़े पैमाने पर मौके के अलावा दारुल हुकूमत के शहर को रियासत के तमाम 13 अजला के लिए माशी तरक्की के इंजन के तौर पर मकसूर किया गया था। अपने बयान में साबिक वज़ीर आला ने कहा कि मुकासिमत की सियासत में दारुल हुकूमत का शहर अमरावती फंसकर बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क ये देख रहा है कि किस तरह अमरावती के हज़ारों किसानों ने अपनी कीमती आबाई अर्जी जो 33,000 एकड़ है की कुर्बानी नए दारुल हुकूमत के लिए दी थी। इन किसानों ने पेश कीमत अराजी की अजीम कुर्बानी दी थी। ये कुर्बानी मुकम्मल रियासत के लिए शानदार मुस्तकबिल की तामीर के एक अजीम मकसद के लिए दी गई थी। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुक़द्दस मिट्टी और मुक़द्दस पानी को हर गांव और हर कोने से अमरावती की तामीर के लिए भेजते हुए इसकी हिमायत की थी। तेलुगु देशम सरबराह ने कहा कि अवाम की बहैसियत मजमूई क़वाइद दारुल हुकूमत के शहर अमरावती को शक्ल देना है जो आंध्रा के हर शहरी का अजीम ख्वाब है। ताहम ये ख्वाब हुकूमत के नामुनासिब मंसूबों की वजह से चिकनाचूर हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर अमरावती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज को आगे नहीं बढ़ाया गया तो हर कोई मुस्तक़बिल की नस्लों को होने वाले नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे। नायडू ने कहा कि 3 दारुल हुकूमतों का मकसद रियासत के लोगों के मुस्तक़बिल के साथ ख़तरनाक खेल खेलना है। एक दारुल हुकूमत के लिए तमाम आंध्राइयों की जानिब से आवाज़ उठाने की फ़ौरी ज़रूरत है। दुनिया की मशहूर कंपनी फैट ऑटोमोबाइल की जानिब से तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाएगी। रियासत में पहले ही सरकर्दा कंपनी अमेज़न, गूगल, फेसबुक और एप्पल ने सरमायाकारी की है। फैट ने ऐलान किया है कि वो हैदराबाद में ग्लोबल डिजिटल हब के क़याम के लिए 150 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी करेगी। इससे मुलाजिमतों के 1000 मौके पैदा होंगे। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर FCA नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक ममता छामत्री ने वर्चुअल तरीक़ेकार के ज़रिए मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुजवज़ा ग्लोबल डिजिटल हब फैट का शिमाली अमेरिका के बाहर बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर होगा। FCA ICT इंडिया को फैट की ग्लोबल टीम के अटूट हिस्से के तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल हब का क़याम हैदराबाद में अमल में लाया जा रहा है। आने वाले वर्षों में नए सेंटर के ज़रिए हैदराबाद और इसके बाहर अपनी मौजूदगी को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। FCA हिंदुस्तान में 150 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी का पाबंद अहद है। ये सरमायाकारी नए डिजिटल हब के क़याम के लिए की जा रही है। इस सरमायाकारी से 2021 के अवाखिर तक तकरीबन 1000 नई मुलाजिमतें पैदा की जाएंगी। FCA डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियों को फ़रोख्त करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 2018 से ज़ैलुत्तवा असातिज़ात की तनख्वाहें और वजीफ़ों में इजाफे के मसले को फिलफौर हल करें। तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर्षवर्धन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकरीबन 3 लाख टीचर्स और 3 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स हुकूमत की इस लापरवाही से परेशान हैं। अगर हुकूमत फिलफौर PRC नाफिज करते हुए इन्हें फ़ायदा ना पहुँचाती है तो कांग्रेस कमेटी इसके खिलाफ एहतजाज करेगी। राष्ट्रंలో ఉన్నటువంటి तेलंगाना स्टेट में जो टीचर, एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स वो लोगों के लिए दिसंबर 31 तक बोले तो नया साल शुरू होने के टाइम पे ज़रूर वो लोगों इससे पहले क्या पूछे उतना 60% PRC। जायदाद के लिए दामाद ने सास और ससुर का कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाली वारदात AP के ज़िले कृष्णा के जगियापेट में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक N बाबूराव बंजीपालेम इलाके में विलेज वॉलंटियर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा है। इसके ससुर 65 साल मुत्तैया और 60 साल सुगनम्मा इसी गांव में रहते थे।
बाबूराव के अक्सर झगड़े जायदाद के मामले में इसके सास और ससुर से होते थे। इसी तरह के झगड़े के बाद कल शब इसने चाकू से इन दोनों पर हमला करते हुए इनको कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाबूराव फरार है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका सर फहरिस्त है, जबकि हिंदुस्तान और ब्राजील बतदरीज दूसरे और तीसरे नंबर पर है। दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5 लाख से ज्यादा ताज़ा मामले, मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,37,00,000 से तजावुज़ कर गई। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 26,000 ताज़ा मामले सामने आए, जिसके बाद मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1 करोड़ के करीब पहुंची। तेलंगाना में कोविड-19 के 536 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,69,135 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,502 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 622 अफराद रूबा सैद हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबा सैद होने वालों की तादाद बढ़कर 2,70,000 कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 500 से ज़्यादा ताज़ा मामले दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,76,000 से तजावुज़ कर गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।